एक ही उपवन में खिलते हैं फूल, दोनों एक ही उपवन में खिलते हैं। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। इस जन्म में नहीं मिले पर भव में मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। एक भाई वो है जो भोगों में रमता है। एक भाई वो है जो मुनिराज बनता है। एक भाई वो है जो भोगों में रमता है। एक भाई वो है जो मुनिराज बनता है। भाई दोनों एक ही माता से जन्मे हैं। भाई दोनों एक ही माता से जन्मे हैं। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। इस जन्म में नहीं मिले पर भव में मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। सरस गए. चालू कर दिया. चालू कर दिया. मेरे को पता नहीं था. Next, I would like to request our chairman, Sri Devendra Bhai Mehta, come and say a few words. Oh, right here. Why don't we bless they commit their time for us. Don't forget they're here just for us. There is no other gain. Our church is blessings and then they're here to help us. So with that, I want to welcome you all. Welcome to the 30th camp. Many of you here from the beginning. Many of you new. Many have come from faraway places like California, some just nearby, maybe a few miles away. The question is, where do you come from? Right? I might say I was born in Africa, I came from Uganda. You might say you were born in America, you were born in India, some area in India. I might say I was my family, I came from my family. But what is the root cause of that, where you came from? I bet you none of you know. Am I right? There's no idea where you came from, unless you have some special powers, sunlight. Not only that, in reality, none of you have an idea where you're going to end up. Am I right? So what are we going to do about it? Can we just accept that, or are we going to challenge that? And make it our destiny and control that? What do you want to do? Okay. So if you are again, you might say, I've been taught by Peter Bird's message that maybe I could do that. But do you actually know how to do that? I've been taught that yes, it's possible. Do you know how to do that? Well, probably many of you are on a journey, but what's so special about Samiji in the actions of what they do and what's can be special is to answer that question. Why are you here? What was the reason you ended like this? What is it that you can actually do to maybe guide yourself and your outcome to the next place? Right? So the answer to the question is this camp, nowhere else. So I congratulate you already for coming here, because somewhere in your journey this was meant to happen because you had that drive. Right? So you're already taking a big step forward. So what I ask is you participate in everything.
right? This is a whole package, including the fun, including the food, in the sports, the games, socialization, good sons getting together, different sons, all that's important. But also come early. You know, don't miss out on the yoga. Don't miss out on the Bhakti. Don't miss out on the meditation. Right? Take notes, take heed. This is it. This is your journey, right? This is a boost to your progress. So with that, I welcome you all and find enjoy. Get in there. Thank you, Devendra Bhai. So, Jai Jindra once again. Just to keep you waiting. और या फिर कहूँ मोक्षानु मार्गी सवगर सविकाय, ठीक है ना? ताकि अगर आप सब यहाँ पर आ गए हैं तो आप मोक्ष के मार्ग पर चलने वाले हैं, ये तो आपने साबित कर दिया है। तो जेईई 3rd ईयर कैंप में वीरेंद्र भाई ने आपका स्वागत कर दिया। मैं अभी एक बार आपका स्वागत करना चाहता हूँ। मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है आप सबका स्वागत करते हुए। देखिए, हमारी आत्मा ने कितने जन्म लिए, ठीक है ना? और कितनी बार 6ठे, 7वें, 8वें, 11वें ग्रह स्थान तक गए, फिर से वापस आ गए। लेकिन इस बार वन वे ट्रिप करना है ना? बैठे यहाँ पर। तो इसके लिए क्या करना होगा? सपक श्रेणी कैसे रह सकते हैं, कैसे मोक्ष पा सकते हैं? इसके लिए हमारी आत्मा को ग्रेट बनाना होगा, ठीक है ना? एक प्रेसिडेंट है हमारे, वो बोलते हैं मांगा, तो हमारा भी सूत्र है मांगा, मेक आत्मा ग्रेट अगेन। वो पहले कई बार ग्रेट बन गई है, लेकिन वापस आ गई है, फिर से बनानी है ग्रेट, तो मेक आत्मा ग्रेट अगेन। और आचार्य महाप्रज्ञ की बायोग्राफी में पढ़ रहा था, तो उसमें भी आचार्य श्री ने लिखा है कि हमें ग्रेट बनने की कोशिश करनी चाहिए, सामान्य बनने की नहीं। तो सिंपल लैंग्वेज में बहुत बड़ी बात कह रही उन्होंने। तो फिर प्रश्न ये आता है कि हमारी आत्मा को ग्रेट बनने से कौन रोकता है? कौन रोकता है? कर्म। थैंक यू। So that brings to our camp's topic, ठीक है ना? साइंस ऑफ कर्म। तो इसका मतलब यही है कि आत्मा को अगर मोक्ष की तरफ ले जाना है, तो ये जो ब्रेक लग रही है, ये कर्म जो है, उसको अच्छी तरह समझना होगा। तो यही आदरणीय स्वामी जी हमको 3 दिनों में समझाने वाले हैं। हमें ये आशा है कि आप इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे और इससे भी इम्पोर्टेंट है अपने जीवन में उतारेंगे। फिर तो आपको ग्रेट बनने से, मतलब आपकी आत्मा को ग्रेट बनने से कोई नहीं रोक सकता। ओम नेक्स्ट, जैसे हम हर बार करते हैं, थोड़ा आइस ब्रेक सेशन करेंगे। तो आई वुड रिक्वेस्ट one person from each family to stand up, say your name, your spouse name, family people's name, and if you can, just in one sentence tell what you want to get out of this camp. It's optional, you don't have to say, but you have only 1 minute, okay? Because we want to start this lecture by 8:30. Okay? So I'll start with the ladies. So. Jai Jindra, Pranam everybody. I am Harsha Shah. My husband is there, Nayan Shah. Stand up. What we want ऊपर थैन बोलो। what we want to understand from this camp is that karma is going to come because we are always minding it. But how we, that is an answer, but how we can do some work and be proud of that. That
is the key, where what we are lacking, and then this life and death is going on. So we want to break that. Thank you. Thank you. The whole family, if they can stand with you, I think we can welcome the whole family together. That was very good. बलरामी नंदन स्वामी संधि जी, मैं वैशाली की वाला, मेरे हस्बैंड अनिल की वाला, and I'm proud to be daughter of Savila Mehta. Vandana Swami Samiji. I'm from Boston. My name is Meeta Shah. My husband is Shailesh Shah. And definitely like to reach ultimate goal of moksha. Learning from daily. My name is Yara Gazi. And I'm Manoj. my mom, Punita Gandhi, and my sister, Ruth Gandhi. We're from Orlando, Florida. We know you guys. And I. 18? And I guess one thing I want to keep learning is keep learning about Jainism, get motivated to keep learning about Jainism, because that is very hard to just start. You can be more interested, and once you start learning, you get more motivated, but the hardest part is the first step. Jainism, Padam Swami Samiji, my name is Handoshi, my mom, Preeti Doshi. My dad is over there, Ganesh Doshi. My younger brother, Meeta Doshi. This is our 10th camp. We've been coming since we moved to Florida 10 years ago. And We missed one actually. okay. Jai Jai Swamiji, Vandana Swami. My name is Hima Jain from Orlando here. My mom is here, Raksha Jain, and some of the family members will join tomorrow. We've been here doing JVP camp since 2010, and this time the purpose is to learn on karma and death. Thank you. Vandana Swami Samiji. I'm Priyanka. Here with my daughters, Adisha and Swasti, and my husband Priyam. This is the third time we are coming here in the camp. Jai Jai everybody. My name is Mihir Shah. I'm here with my wife Pooja Shah. We've come from Atlanta. The goal for our family is very small. We've come with our kids. Today's kids very logical and scientific in their thinking. So hopefully they can understand a little more about Jainism in a scientific way, in a logical way. So hopefully that it helps them in their life the way it hasn't helped us in our life. Thank you. Madhya Samriti. My name is Sahil Mehta. I'm here with my wife Swapna, Aditi, my daughter, and my son Krish. We are from Atlanta, Georgia. First of all, I'm excited to hear there are repeat 10 years and 15 years where families have been here. This is our first time. Think we are here to experience what this camp offers, but at the same time, we want to inspire our kids. They being born in US, and we grew up in India, so they have not seen this type of shibirs which we used to go in India, and would love them to learn more about
Jainism and stick with it as they grow up, go to high school and college, and hopefully in their future bring their kids to such camps. Thank you. Jai Hind. Manami Naman Swami. Thank you, the committee, for organizing such a beautiful camp again. This is my fourth one. I'm here with my parents, Ranjit Singh Mehta and Himlata Mehta, and I think it's second camp for them. And we were actually supposed to bring Shamiji to Miami, but Shashkin was bringing them now. But the goal for the camp is again, it's every year we need to kind of reinforce the learnings which we have had before, have the revision, and also learn something more. So the goal this year is revision, but also learning more things from you guys. Thank you. Jai Jinendra, Vandami Naman Swami. My name is Dhairya Kamdar. I am coming from Savannah, Georgia, and it's my first time this camp. For me, it's like I'm a thirsty man in front of an ocean of knowledge. So I'm looking forward to learn anything and everything I can from you. Hi everyone, my name is Keyur Shroff. I'm here with my twin brother Kaushal. My dad is here as well, Divesh Bhai Shroff. And with my two nieces, Ishani, Shivani, and my son Krish. We are really interested. This is actually our first camp. However, when my brother and I were 8 years old, we actually attended Shibir just like this one in Lagno in Rajasthan. And we met with Acharya Tulsi. And it had such a profound impact on us that we wanted to make sure that our kids learn the same exact thing. So we are super excited. I am mostly interested in meditation because of the difference it has made in my life. And so I will try and see how I can make that a routine and benefit from it. Thank you. Jai Hind. My name is Shashikant Shah. I'm here with my wife, Lata Shah, and my sister is here, Tuhina Shah, and I have with me Mr. Indevadar Bausa, the beginner of Jain Society. I'm here since this is my 30th camp. 30th camp. Nami Naman Samiji, Rakesh Jain from Vero Beach, and I brought my family, Vero Beach family with me. Ramit Bhai, Madhu Bhai, Bhanu Bhen, Malti Didi. So this is, I moved to this area in Vero Beach in 1998, so this would be my 28th camp, I believe. I have not missed a camp so far, and I hope. But my main goal for this attending this camp is to achieve a better understanding of the philosophy of karma, the science of karma, and apply it in my life. Thank you. Thank you. Vandami Swami Swamiji, Jai Jinendra, everyone. So my name is Siddharth Lunawat. I am from Orlando, Florida. I think somebody mentioned a comment like this is a great camp you go to now. Maybe your kids grow up and go there. So I'm one of the kids that grew up and I came back to camp. So my first camp was when I was 10, and I'm 40 now. So I've been here. I've been to the first camp as a kid. You'll see me running around with my daughter. She's 4 years old. So this is her first camp. Unfortunately, we couldn't attend a lot of the camps in the middle because we lived out of state for a long time. But it's been great. My wife couldn't make it. She's out for a conference this weekend. My dad was in India, but my mom is here. She's been coming for a long, long time, but this is my first camp, I think, in almost 24 years. So if anybody has any questions how it comes back, it's actually a really good thing to be back in this camp. Vandami Naman Swami Samiti. Vandami Naman Swami Samiti. I'm from New Jersey. My name is Suparas Mehta. My wife Kiran Mehta is here, and this is our first camp in Orlando. And the main purpose is that we have been, learning about karma for a long time,
We had camps in New Jersey almost every year for the last 10 years. But this one is special, only 8 Swamijis are here. And we want to see how this karma is affecting all of us and how to get out of it. So that would be my gift. और वो जाने के रास्ता जानने के लिए आए। Hello, my name is Divya Shroff, and very proud to say that we are in Bhiksu Shashan since generation. My father, forefather, and all that things, and I just get opportunity to work with 3 acharyas, Acharya Shikhi, Acharya Shimon, Acharya Shimon Sharma. And as we said that this camp is very, Diksha Jam is 50 years this day. So I'm proud to say that my young also started 50 years back. My first cabin in Lagnu, and the city was in 1974. After like 3 or 4 cabins, and I got a lot of benefit from that city. It has changed my life completely. And that is the reason where I am here with my 2 sons and 3 grandsons. So all of them are here because they know, and in such a small age also they are doing meditation at home right now. I teach them little bit, but I said we need to learn a little bit more if you want to come up in life. So I brought them here so that we tried from Georgia. We are here, and as I told you, I get so much benefits because that not time to explain, but it has changed my life significantly. So I'm very proud of it. And thank you very much to all committees that we can solve my problems and ask my questions and be very good at it. So, मैं सुरेंद्र कांकरिया न्यू जर्सी से एंड माय धर्मपत्नी ओम प्रभा सुनीता कांकरिया। तो आने का हेतु तो ज्ञान की गंगा बढ़ने वाली है। जयसंगी जी के राज में 2 और पदार्थ वाली तो थोड़ा भी हम सीख पाए कर्मों की निर्जरा और कर्मों के बारे में तो लिंक हुआ होता है। Look forward. Orlando first camp I'm attending. It's a great pleasure to meet Father Dilip. Surendra is the chairman of JVB in New Jersey. My name is Arvind Nandu. My wife is Monica Nandu. And I'm coming to this camp for almost 30 years. And I'm attached with Jain Vishwabal from the day one. Thank you. Jai Jitendra. My name is Devang Chitalia. My wife Ushma Chitalia and my parents Suresh and Ansa Chitalia. So we've been attending this camp for the last 30 years. First year we were just spectators, and last 29 years we were in the back office. So, but what we all have learned is our lives have changed here completely since the first day Swamijis came here, and we could not have it better. So, thank you. मेरा नाम है किशोर पोखरना, मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर रेणु पोखरना। We are from Columbia, South Carolina. किसी ने कहा है तेरे जीवन का है कर्मों से नाता, तू ही अपना भाग्य विधाता,
ये सब सीखने के लिए हम आए हैं कि ना सिंगर है। My name is Shanik Shah and my wife Meera Shah. We have been attending this camp since 2015. We are from Orlando, and reason for coming here today is that karma plays a big part in our life, and I want to know how it can affect and improve my road to moksha. Jai Hind. Vandami, Jai Jinendra, Shamini, all of you. My name is Nayan Shah and my wife is Harsha Shah. We're from Miami. We've been involved with, from the first time when Samriti Charitra Pragyaji was there for FIU education. And since then we've been involved so many times. And we are here probably third time. We've been here in this kind of camp 2 years ago. And my main goal is how karma plays a big role in our life and how we can handle on day-to-day matter. Thank you, Jai Chandra. Vandami Namaste from New York, and I arrived with my wife, Sujana. Yeah. And thank you, Vandami, and to everyone. Vandami, my name is Chandrakant Shah, and my wife is Aruna Shah, and we live in Santi Niketan, Florida. And Shamaji, Jai Jinendra, everybody. My name is Vinod Doshi. My wife, Keita Doshi, and my mother-in-law, Hema Ben Bora. I'm sure my wife has attended all 38 games. I missed one last year. And the goal is to get rid of this karma, so at least I would know who I am and I can see my true identity. Hello everybody, you already know who I am. Devendra Mehta is my wife, Naina Mehta Singh Sanai. And my guest owner, Sudhamani, she's my amazing mom from New York. So let's welcome her. She's been probably first camp maybe. Anyway, we appreciate you coming and we'll enjoy it together. मैं हूँ सुनील आंचलिया, यहाँ मेरे साथ श्राविका जी, सुनीता आंचलिया भी है. I am very glad to come back to my family in JLB Orlando. Okay sir, New Jersey मत बताना, ये बात मत बताना. I have been failing in multiple births. I don't like failure. So Acharya Mahaprabhu used to say, 99% of preparation for moksha can be done in this birth. So my journey is to get too close to the 99% through our expert Samiji. Thank you. It's the connection. Jai Jinendra, my name is Arpan Sethi. I'm here with my mom and dad, Vikas Sethi and Sita Jain right there. This is, I think this is our 10th camp. We've been coming since we moved to Orlando. I think the goal of this camp is to, like I think everyone said, to kind of expand our knowledge on karma and what we can do in our day-to-day lives to reduce the amount of karma we take in. So that's it.
I did not want to miss out, so I asked for the mic. Anyway, so my wife Shivani Sejal Mehta, we have been with JVP since 1999, and I think the first camp was 1999 or 2000, I think. Since then, we might have missed a couple of them or 3 camps probably overall. Science of Karmavad is obviously the thing that needs to be done. So, कितना भी आप जान लो, लेकिन हमारे लिए at this stage, I mean, we need to know more. And like someone said, ocean of knowledge is in front of you. So how can we miss that? So we need to continue to attend the camps and such opportunities. One thing I would like to say is the camp doesn't end on Sunday. Our, what you call, Swadhyayas continues. I would encourage everyone, since we have this Zoom facility, continue to join Swadhyayas whenever, every time you get a chance, and there are so many Swadhyayas happening during the night. Keep suggesting everyone. That's it. Thank you. Thank you, Lord. और कोई किसी को Vandami Namasami Samiji, I'm so blessed to be here. This is my first camp and be able to get darshan of all of you Samiji. So, Om Arham and Jai Jin to everybody. I'm very excited to know the real science behind karmas. We all know if we do good karmas or bad karmas, our next gati is based upon that. But I'm very interested to know, get some tools which will allow us to shed our old karmas and not have bondage of new karmas. Thank you. Vandami Namasami Samiji. This is Devangi Shah, and my husband is also here. Okay, he is here. Mehul Shah, we are from Tampa. We have attended many camps. I don't remember the number of camps, but I think from 2004 to till today, we did not hear the last couple of years because we were in India. But we are really looking forward to learn the science of karma. Actually, આટલા વખતથી સ્વાધ્યાય કરવાથી ઘણું બધું જ્ઞાન છે, પણ પળે પળે જાગૃતિ કેવી રીતે ખરેખર આ જ્ઞાન સમયે સમયે હાજર કેવી રીતે રહે એના માટેનો પુરુષાર્થ આઈ હોપ કે વધારે રિચાર્જ થઈએ, કારણ કે અત્યારે છે પણ એટલું દરેક વખતે જાગૃતિ નથી રહેતી. સો ઇટ વિલ પ્રોબેબલી હેલ્પ અસ ટુ બી મોર સ્ટે અલાઇવ. Vandami Namasami Samiji, Jai Jinendra Sravak Sravakao. મારું નામ હર્ષા નાગા. I'm from Ocala, Florida. My husband disappeared somewhere. Rasik Nagda. This is my 28th camp. Sorry I missed a couple of them, but I try my best to be here most of the time. આ આત્માને લાગેલા કર્મોને કેમ જલ્દી ખપાવીએ એની જ ઈચ્છા કાયમ રહે છે અને એના માટે આપ સૌ પાસેથી આ જ્ઞાન લેવા માટે અહીં રહેલા છીએ. Keep that one in our mind that we don't add any more bad karmas that can keep into the wrong path. Thank you.
Pandami Namasami Samriji, I'm Darshana Desai. My husband Darsh Desai is here. This is our 13th camp, and the biggest objective for me is to how to implement science of karma in my day-to-day life. So when I'm facing any situation, I know how to best handle it and not accumulate karma. So that's what I want to walk. Vandana Vinod Samiji. My name is Nathan Mehta and my wife Rita Mehta. We've been here in 10 camps so far, and we try to learn as much as we can to share our karma and try to get our religion more things inside. I'm Gosha Shah from City of Victoria. I'm descended from about 10 class, other than that, I have many issues. And this is my second class, and we have learned a lot about I have attended a lot of lectures and heard a lot, but I just want to know with one simple thing that we can follow in our day-to-day life. We talk about the of karma. Thank you everyone for introducing yourself. My name is Mehul Shah, and I am here with my wife Anita Shah and my niece, she's not here. Next, I would like to request Adharaniya Swami, Professor Swami Chaitanya Pragya ji to say a few words, and then at 8:30 we will start the lecture. यदि चैतन्ये मुकुरैव भावाश्चिदचित समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिलसन्तान्तरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सभक्ति नमन। आदरणीय समनी जी, उपस्थित सभी अलग अलग शहरों से, अलग अलग सिटीज से समागत कैंप के प्रतिभागी, हम सभी से आप सबसे सुन रहे थे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि 30वां कैंप अटेंड कर रहे हैं, और ये 30वां कैंप है। ऑरलैंडो के हिस्ट्री में जब से फैमिली कैंप शुरू हुआ है, तब से ये 30वां कैंप कंटिन्यूअसली निरंतर जो है होता रहा है, और ये 30वां कैंप हमारे सामने है। एक बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन के रूप में इस ईयर को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये फैमिली कैंप, इसका जो टॉपिक रखा गया है वो है कर्म सिद्धांत, साइंस ऑफ कर्म, कर्म विज्ञान। कर्म सिद्धांत जैन धर्म का, जैन दर्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। जितना कर्म की सिद्धांत की गहराई में जैन आचार्य गए हैं,
उतना आप किसी भी अन्य परंपरा में कर्म के संदर्भ में इतना कुछ जानने और समझने को आपको नहीं दिखाई देगा। यद्यपि सभी भारतीय दार्शनिक परंपराएं कर्म सिद्धांत को मानती है, चाहे आत्मा की अमरता के सिद्धांत में कोई विश्वास करता है या नहीं करता है, किंतु कर्म सिद्धांत में सभी लोग विश्वास करते हैं, चाहे वो बुद्धिज्म हो, चाहे अन्य कोई दार्शनिक विचारधारा हो। सो हम इस बात से समझ सकते हैं कि ये कर्म सिद्धांत कितना महत्वपूर्ण है, जिसको कि एक्सेप्ट किए बिना हमारे जीवन के किसी भी प्रकार के व्यवहार की व्याख्या करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कर्म सिद्धांत को समझना आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि व्यावहारिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। कर्म क्या होते हैं, कर्म का बंधन कैसे होता है, कर्म से मुक्ति कैसे पाई जाती है और कर्म बंधन से बचने के क्या हमारे सरल सीधे सिंपल उपाय हो सकते हैं, इसके बारे में ये आपने वीडियो वैसे शेयर किया गया है व्हाट्सएप के अंदर और सबने देखा भी होगा। हमारे जैन चिंतन में जो कर्म सिद्धांत के माध्यम से जो जीवन को एक नए ढंग से जीने का और जीवन के प्रति जो दृष्टि हमारी होनी चाहिए उसको समझने का जो एक व्यावहारिक स्वरूप समझाया गया है, वो इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे कोटेशन के माध्यम से आपको समझ में आता है। हमने 2 वीडियोस में उसी तरह के सारे प्रिंसिपल्स को कोशिश किया है कि हम कवर करें कि जिसे हर कोई समझ सके, जान सके और प्रैक्टिकल रूप से ये किस तरह से उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना है ये उसे पता चले। तो ये मैं थोड़ा सुनाना चाहूंगी। Change your karma, action and behavior, change your destiny. Every thought, word, and action matters. Your soul is the doer and enjoyer of karma. Your actions matter. Your choices ripple through eternity. Live consciously, act kindly, because what you give is what you get. In a world driven by speed and technology, one ancient truth still holds power. Karma, the law of cause and effect. Every action we take shapes the world around us and the life within us. Karma is not punishment, it's responsibility. It reminds us that kindness returns as kindness, and harm returns as harm. In modern times, this principle guides ethical choices, whether in business, relationships, or social justice. Karma is the universal law of cause and effect, suggesting that every action, thought, or intention sets off a chain of consequences that shape our future experiences. Today, karma inspires sustainability, mindfulness, and compassion, values we need more than ever. Mahatma Gandhi rightly said, "You must be the change you wish to see in the world." Albert Hubbard rightly said, "Men are not punished for their sins, but by them." Chloe Taylor rightly said, "You are the architect of your destiny, build wisely." Wayne Dyer rightly said, "How people treat you is their karma. How you react is yours." Our programs for the kids of age 8 to 12 are 1. Learning karma through stories and games. 2. Mindful crafts and meditation. 3. Scavenger hunt. 4. Spiritual quiz contest. 5. Fun yoga and emotional awareness. Our programs for youths of age 13 to 20 are 1. Lectures on applied philosophy and sense of karma. 2. Workshops on awareness and detachment. 3. Reflection circles and Q&A. 4. Creative contests and group activities. Our programs for young adults and adults are: in morning, 1. Meditation. 2. Bhaktama and Mantra. 3. Yoga and mindful walking. In afternoon, 1. Architecture of Future of Jainism Reflections by young adults. 2. Panel on Karmic Footprints and Ecology by young adults. 3. Lectures on practical and scientific aspects of karma. 4. Workshops on awareness and detachment. 5. Reflection circles and Q&A. 6. Creative contests and group discussion and activities. Now meet our dignified Now meet with our dedicated and generous members of Board of Directors. Now meet with our dedicated and devoted members of JVB Orlando Committee.
Now meet with our dedicated and dynamic in charge, doctors and teachers of JVB Orlando Guyanshala. Now meet with our health experts and stay healthy. Please contact our in charge for any help anytime in 24 hours and 3 days. Enjoy the sessions with the learned Samanajas, the senior and junior disciples of Ayakhaya Shri Mahashramanji. Jai Jinendra and see you soon in the camp. आप लोग घबराना नहीं 24 सुन करके तो ये मैंने आपको वीडियो इसलिए सुनाया कि जो हम प्रैक्टिकल रूप में कर्म सिद्धांतों को जिस रूप में समझना चाहते हैं, ये कोटेशंस के माध्यम से बहुत सिंपल तरीके से वो सिद्धांत हमें समझ में आता है। कर्म सिद्धांत जैसा कि कहा गया है कि जैन दर्शन का एक यूनिक सिद्धांत है और ये सिद्धांत जैन दर्शन को अन्य दर्शनों से भी अलग भी करता है। जो अन्य दर्शन कर्म सिद्धांत में विश्वास करते हैं वो साथ साथ में ईश्वर में भी विश्वास करते हैं और उनका ये मानना है कि हम जो कुछ कर्म करते हैं, कर्म करना तो हमारे हाथ में है किंतु फल देने वाले ईश्वर होते हैं। उससे विपरीत जैन दर्शन का जो कहना है कि आप ही कर्म के कर्ता हैं और आप ही कर्मों के फल के भोक्ता हैं। यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर योर राइट और रॉन्ग डीड्स। तो इसमें कहीं भी ईश्वर की बात नहीं कही गई है कि ईश्वर आपको फल देता है, आपके कर्म स्वयं ही आपको अपना फल देते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक यूनिक सिद्धांत जो जैन दर्शन ने दिया है और इससे आत्म पुरुषार्थवाद का सिद्धांत फलित होता है कि मनुष्य को अपने कर्मों के फल स्वयं को भोगने होते हैं और कर्म करने वाला वो स्वयं है। अगर वो अपनी डेस्टिनी को चेंज करना चाहता है, अपनी लाइफ को कुछ नए बेटर तरीके से जीना चाहता है, तो उसको आवश्यक है कि वो अपने कर्मों पर विचार करे, अपनी एक्शन पर विचार करे। ये कर्म शब्द भी दिया गया है किस लिए? क्योंकि ये एक्शन के कारण से ये कार्मिक डस्ट आत्मा के साथ चिपकती है और उस पर प्रभाव डालती है। इसलिए एक्शन ओरिएंटेड ये होने के कारण से इसका नाम, इन कर्म पार्टिकल्स का नाम कर्म दिया गया है। So karma means action. So these karmic particles are getting attracted by our own action. So we are responsible for their fruition also, and if we want to correct them, we can correct. तो भगवान महावीर ने कर्म सिद्धांत की चर्चा किंतु साथ में उसे ईश्वर का स्थान नहीं दिया। ईश्वर के बारे में कहा जाता है कि ईश्वर वो होता है जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थयति ईश्वरः। ईश्वर वो होता है जो सब कुछ कर सकता है, जो चाहे सो कर सकता है। तो ईश्वर एक ऑलमाइटी पावर के रूप में देखा जाता है। इसलिए जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं उसे सर्वशक्तिमान मानते हैं। अल्लाहु अकबर का आप लोग मुस्लिम का एक सुबह उठ करके इस तरह का एक आता है उनका स्टेटमेंट। तो इस बात का मतलब ये है कि भगवान जो है सर्वशक्तिमान है, वो जो चाहे सो कर सकता है, उसके हाथ में सब कुछ करना है, उसकी इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिल सकता है। किंतु भगवान महावीर ने न तो ईश्वर कर्तृत्व को इस मामले में स्वीकार किया है कि ईश्वर कुछ करता है और न ही इस बात को स्वीकार किया है कि कर्म को ईश्वर की जगह एक ऐसी चीज है जिसके चलाए हम चलते हैं। उन्होंने कहा कि कर्म को भी बदला जा सकता है, कर्म में भी परिवर्तन किया जा सकता है। ये आप सबके अपने हाथ में है कि हम किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं, किस तरह की जीवन शैली का निर्माण करते हैं, क्या किस तरह का हम लोग अपने जीवन में गोल सेट करते हैं और उसको अचीव करने के लिए हम किस तरह के मीन्स का उपयोग करते हैं। तो ये सारा डिसीजन आपके हाथ में स्वयं के है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की एक पुस्तक का नाम भी है तुम अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम्हारे भाग्य का निर्माण, तुम्हारे भाग्य के बारे में जो भी डिसीजन लिया जाता है वो कोई दूसरे के द्वारा नहीं लिया जाता है। आपकी अपनी एक्शन ही वो उस तरह से डिटरमिन करती है कि आपका लाइफ किस तरह का होगा और आप अगर उस लाइफ को और बेटर बनाना चाहते हो तो किस तरह की एक्शन आपको करना चाहिए।
इसीलिए जैन दर्शन में जितना सैद्धांतिक चर्चा मिलती है उतना ही एथिकल दृष्टि से भी विचार किया गया कि इन सिद्धांतों को हम जीवन में कैसे अप्लाई करें, जिससे कि हम कर्म के बंधनों से बच सकते हैं। नए कर्मों को करते समय हम कितना सावधान रहें, कहाँ हम सावधान रह सकते हैं, कहाँ हम उसे मिनिमाइज कर सकते हैं और कहाँ हम उसे बदल सकते हैं। तो इस तरह की जो मान्यता हमें जैन दर्शन में देखने को मिलती है, इससे पता चलता है कि कर्म कोई ईश्वर नहीं है, कि ईश्वर की तरह सर्वशक्तिमान नहीं है, कि जिसको हम चैलेंज नहीं कर सकते, जिसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। ऐसी कोई वो शक्ति नहीं है। ये हमारे हाथ का ही एक तरह से मेल कहा जाता है कि कर्म हमने ही किया है। अतीत का कुछ लोग भाग्य के भरोसे रहते हैं कि हमारा भाग्य में जो कुछ लिखा है वही होगा और इसीलिए उसको जैसा है वैसा एक्सेप्ट करना होगा। किंतु जैन दर्शन में इस बात को कहा गया कि भाग्य और कुछ नहीं होता है। आपने पास्ट में जो कुछ किया है वही वर्तमान में भाग्य कहलाता है और आप वर्तमान में जो कुछ करते हैं वही आपके भविष्य का भाग्य बनता है। इसलिए भाग्य बनाने वाले आप स्वयं ही हैं। आप किस तरह के भाग्य का निर्माण करना चाहते हैं उसके लिए आपको सोचना है, उसके लिए प्लानिंग करना है और जीवन में उस तरह के कार्य करना है जिससे कि आपका जीवन आगे से आगे बेहतर बनता चला जाए और जो जीवन में आप अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर सके। जैसा कि कुछ लोगों का कहना है कि हम कर्मों से कैसे मुक्त बने और इसके लिए हम ये कर्म विज्ञान को समझना चाहते हैं, तो हम इन 3 दिनों के दौरान अनेक ऐसे टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे जिसमें इस बात पर भी विचार किया जाएगा कि कर्म के बंधन जिन कारणों से होते हैं उन कारणों का निवारण कैसे किया जाए। हम अगर कारण को चालू रखेंगे तो उसका परिणाम को उससे बचना बहुत मुश्किल होगा। हम अगर बीज का जो है बबूल का बीज बोएंगे तो उसका जो फल आएगा, उससे जो पेड़ निकलेगा उसमें कांटे होंगे, आप उसे रोक नहीं सकते हैं। इसलिए आवश्यकता है कारण को पर हिट करने की। जो कॉज है उस पर मेन अगर हम हिट नहीं करेंगे तो उससे कॉज के कारण से जो इफेक्ट आना है उसको रोकना भी हमारे हाथ की बात नहीं हो सकती है। तो इसलिए कारण पर विचार करना भी बहुत ज़रूरी है, उन कारणों की मीमांसा करना भी बहुत ज़रूरी है और साथ साथ में लाइफ को देखना भी ज़रूरी है कि कहाँ हम उन कारणों को पैदा करने में हम स्वयं कहाँ तक अपना रोल प्ले करते हैं और कहाँ परिस्थितियाँ कारण बन जाती है। तो उन दोनों दृष्टियों से हमको इस विषय में विचार करना है। तो आज चूँकि हमारा नेक्स्ट सेशन जो है वो शुरू होने वाला है, उस सेशन को ही हम शुरू कर देते हैं और आज का टॉपिक हमने रखा है डिकोडिंग ऑफ द इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो कर्म सिद्धांत को समझने का मतलब है हमारे अपने व्यवहार को समझना, हमारे अपने आचरणों को समझना, हमारा अपना चिंतन, हमारा अपना एटीट्यूड, हमारा अपना जो बिहेवियर है और हमारी जो इमोशनल स्टेट है और इंटरनल हमारी स्टेट्स हैं वो किस तरह से वर्क करती है, जिसके कारण से कर्मों का आगमन होता है। उसको अगर हम ठीक समझ लेते हैं तो हम वहाँ पर ब्रेक लगा सकते हैं जहाँ से ये चीज़ प्रॉब्लम शुरू होती है। तो इस बात के लिए हम विशेष रूप से मैं अपना प्रेजेंटेशन जो है वो पहले शेयर करती हूँ, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे। तो हमें खास मूल समझना यही है कि जैन दर्शन ने कर्म सिद्धांत को जिस रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे जीवन में एक संभलने का मौका मिलता है, नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है, अच्छा जीवन जीने की निरंतर प्रेरणा मिलती है और व्यक्ति स्वयं अपने पुरुषार्थ से अपने जीवन का सही निर्माण करने में सफल होता है। उनको ब्रेक हाँ हॉल बी में उनको यूथ के लिए हाँ मैं अनाउंस कर दूं। तो हॉल बी में और हॉल सी में, हॉल बी में यूथ 13+ का सेशन होगा नेक्स्ट और हॉल सी में बिलो 13 का सेशन होगा। तो जिनके भी बच्चे हैं तो आप प्लीज उनको गाइड कीजिए। हॉल बी एंड हॉल सी आर yeah, but right now they are in BMC. There is nothing to do. 13 below and everybody is in hall C. Tomorrow there is hall D also.
और वेलकम अपनी डॉक्टर समनी प्रतिभा प्रज्ञा जी और समनी पुण्य प्रज्ञा जी। एकदम आनंद हो गया हमें तो। आत्मा के 8 गुण हैं। आत्मा के 8 गुण होते हैं जो 8 कर्मों के नष्ट होने से प्रकट होते हैं। तो समनी जी उसके सिंबल के रूप में आपके सामने हैं। समनी प्रतिभा प्रज्ञा जी वहाँ मायामी में यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं और वहाँ की व्यस्त स्केड्यूल होते हुए भी हमारे कहने पर ये बिल्कुल समय पर पहुँच गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इनको बहुत बहुत साधुवाद है इसके लिए। न्यू जर्सी से हमारे समनी जी हैं, समत्व प्रज्ञा जी और अभय प्रज्ञा जी, ये दोनों अभी क्लास में जा रहे हैं। तो ये न्यू जर्सी से आए हैं, न्यू जर्सी सेंटर पर काम कर रहे हैं। ह्यूस्टन से ये समनी आरजो प्रज्ञा जी और स्वाति प्रज्ञा जी हैं जो कि वहाँ ह्यूस्टन सेंटर से पर काम कर रहे हैं। और हमारे प्रतिभा प्रज्ञा जी और पुण्य प्रज्ञा जी मायामी सेंटर पर काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में विशेष रूप से FIU में जो हमारे जैन स्टडी प्रोग्राम चलता है तो उसको रन कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पर हैं। सो यहाँ क्लासेस के लिए जा रहे हैं सभी। हाँ हाँ करिए। For those who paying late, we have a souvenir bag at the back, so you can please grab your bag. There is a notepad inside that and pen, so you can take notes and somebody is lecture. और ये जो कैंप जिस बुक पर आधारित है कर्मवाद आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी की बुक है, तो वो बुक भी उसके अंदर है। If you want an English book, some bags have an English book, Doctrine of Karma, and some books have Hindi book, Karmavad. So please collect your book bag. Thank you. And we will start very soon. Origin of Karma, encoding of internal OS of human behavior. आपने एंड्रॉयड और iOS का नाम सुना है, ये नया OS क्या करते तो क्या चीज़ पुराने एक बात है। So oldest OS, which we haven't yet learned. अभी फर्स्ट फैमिली दे रहे हैं, लेकिन you can get the notepad and the pen. इसको भी टेक अभी पहुँचे। हाँ किस चीज़ का ना क्या हो रहा है एक शुरू करें? ठीक है। तो जैसा कि मेहुल भाई ने बताया कि कर्मवाद पुस्तक जो आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी ने लिखी है उसमें उन्होंने कर्म को साइंस के साथ को रिलेट करने का प्रयास किया है, या कहना चाहिए वो साइंस और स्पिरिचुअलिटी के एक तरह से मास्टर थे। दोनों को ब्लेंड करने में आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी का बड़ा योगदान है। कहा जाता है कि विवेकानंद ने कभी सोचा था कि साइंस और फिलॉसफी को, रिलीजन को आपस में कैसे ब्लेंड करें। उन्होंने वो प्रयास कर पाए या नहीं कर पाए, किंतु आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी ने प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से जीवन विज्ञान, जिसे साइंस ऑफ लिविंग के नाम से एक एजुकेशनल सिस्टम के रूप में देखा जाता है, उसके माध्यम से और अपने साहित्य के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से साइंस और फिलॉसफी को, साइंस और रिलीजन को आपस में ब्लेंड करने का जो प्रयास किया वो बहुत ही सफल प्रयास कहना चाहिए। और जहाँ जहाँ इस तरह के प्रयोग किए गए हैं उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स भी रहे हैं।
तो हमें देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से एक कर्मवाद को साइंस की लाइट में डिस्कस किया है। तो सबसे पहला उनका जो टॉपिक डिस्कशन का शुरू होता है वो इसी बात से शुरू होता है कि मनुष्य का जो व्यवहार है वो किस तरह से गवर्न हो रहा है, हमारा ऐसा कौन सा इंटरनल सिस्टम है जो इसके पीछे वर्क कर रहा है। तो जैसा हम जानते हैं कि कर्म सिद्धांत जैन दर्शन में ये कोई एक संस्कार के रूप में या किसी हमारे मेंटल या साइकोलॉजिकल इम्प्रेशन के रूप में ही नहीं देखा जाता है, बल्कि इसे मटेरियल पार्टिकल के रूप में देखा गया है। तो यहाँ से साइंस की बात शुरू हो जाती है। साइंस जो है मैटर के ऊपर वर्क कर रही है, जितने भी एक्सपेरिमेंट साइंस के फील्ड में होते हैं वो मैटर के ऊपर होते हैं, और अगर कोई चीज़ मटेरियल है तो उसको एक्सप्लोर करना इजी होता है साइंस के लोगों के लिए, और उसे समझना, उसका एनालिसिस करना, उसकी स्टडी करना ये इजी होता है। तो हमें देखते हैं कि जैन दर्शन ने कहा कि ये जो कर्म के पार्टिकल्स होते हैं ये मटेरियल पार्टिकल्स है, ये बहुत ही सटल होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, इसलिए हमारे सेंसेस से इनको देखना संभव नहीं होता है। हमारी जो 5 सेंसेस हैं, आँख है, नाक है, कान है, जीभ है, हमारी त्वचा है, जिसके द्वारा हम अनेक विषयों का ज्ञान करते हैं, एंड इंद्रियों के माध्यम से कर्म पार्टिकल्स को देखना संभव नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म कण है। इसको सटलेस्ट कार्मिक डस्ट कहा जा सकता है, सटलेस्ट कार्मिक पार्टिकल्स कहा जा सकता है। ये इतने सटल हैं कि हमारे सेंसेस के थ्रू इनको डिटेक्ट करना संभव नहीं है। अभी तक के वर्तमान में विज्ञान के क्षेत्र में जो भी इंस्ट्रूमेंट, सोफिस्टिकेटेड यंत्र विकसित हुए हैं, उनके द्वारा भी कर्म पार्टिकल्स को देखना अभी तक संभव नहीं है। इसलिए कर्मों को इनविजिबल पार्टिकल्स के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है। इनविजिबल। एक कॉन्फ्रेंस मुंबई में की गई थी, साइंस एंड जैनिज्म को लेकर के बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी, और उसमें हमने रोजर पेनरोज जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे बड़े फिजिसिस्ट माने जाते हैं और वर्ल्ड के नंबर 1 के फिजिसिस्ट माने जाते हैं, उनको हमने लेक्चर के लिए इनवाइट किया था, और उन्होंने ऑन स्क्रीन कॉन्फ्रेंस टॉक के माध्यम से यूनिवर्स के बारे में बात की थी। और साथ साथ में उन्हें जब ये पता चला कि जैन दर्शन में कर्म के बारे में चर्चा होती है और वो एक तरह से इनविजिबल पार्टिकल्स के रूप में देखे जाते हैं, तो उन्हें बड़ा क्यूरियोसिटी हुई कि हम मुझे इस चीज़ को समझना है। सो वर्ल्ड के 1 नंबर के फिजिसिस्ट जिनको हम कहते हैं कि हॉकिंग, आपका नाम आपने सुना होगा, स्टीफन हॉकिंग, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रीफ हिस्ट्री ऐसा करके उन्होंने साइंस के फील्ड में बहुत अच्छी बुक लिखी है। थियरी ऑफ एवरीथिंग बुक भी उन्होंने लिखी है, और उस बुक के एंड में उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि ये यूनिवर्स इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इसे समझना इतना इजी नहीं है, और ऐसा लगता है कि ये यूनिवर्स किसी गॉड ने क्रिएट किया, ऐसा हमें प्रतीत नहीं होता है। ये अनादि अनंत होना चाहिए, जो कि जैन दर्शन का मूल सिद्धांत है कि विश्व अनादि अनंत है, और इस विश्व के अंदर जो चीज़ें हैं वो भी बहुत सारी चीज़ें जो अनादि अनंत है, उसमें कर्म पार्टिकल्स भी जो इस तरह के पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमेशा इस सृष्टि में पाए जाते हैं। जहाँ कहीं जीव रहता है उसके द्वारा जो कुछ भी एक्शन की जाती है, उस एक्शन से वो कर्म पार्टिकल्स जीव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, सोल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और उसके साथ अटैच होते हैं और उसकी शक्तियों को प्रभावित करते हैं। तो हमारा जीवन जो भी चल रहा है वर्तमान में जो है, और हम भविष्य में आगे भी जो कुछ भी नए जीवन में जाते हैं, तो उसमें कर्म पार्टिकल्स का बड़ा रोल रहता है। वही हमारी डेस्टिनी डिसाइड करता है कि हमारा नेक्स्ट लाइफ कैसा होगा, और उस लाइफ में जो कुछ हमारे व्यवहार होते हैं उसके पीछे भी बहुत बड़ा रोल कर्म पार्टिकल्स का होता है। तो कर्म एक तरह से पार्टिकल के रूप में रिकॉग्नाइज किए गए हैं। ये सबसे बड़ी फर्स्ट कहना चाहिए कि बड़ी साइंटिफिक सोच जो जैन दर्शन में कर्म सिद्धांत को लेकर के देखने में आती है। और दूसरी बात है कि कर्म को एक कॉज एंड इफेक्ट थियरी के रूप में देखा गया है। हम ये देखते हैं कि हमारे जीवन में हम जो कुछ करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है।
हम जिस भी चीज़ को देखेंगे, हम आसपास में कहीं कुछ देखते हैं तो हमें लगता है कि ये चीज़ ऐसी अगर हो रही है तो इसके पीछे कारण क्या है, तो हम कारण को डायग्नोज करने की कोशिश करते हैं। बीमारी भी होती है तो डॉक्टर्स जो है वो डायग्नोज करता है कि क्या रीज़न बना है, आपकी बॉडी में किस कारण से ये प्रॉब्लम हो रही है। हमारे सामने डॉक्टर्स कई हैं, डॉक्टर देवेंद्र है, डॉक्टर आंचली है, डॉक्टर रेणुका जी है, और भी कोई डॉक्टर्स हो सकते हैं। तो ये डॉक्टर को भी अगर बीमारी का कोई इलाज करना है तो वो डायग्नोज करते हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न रहा होगा। तो ये हर चीज़ के पीछे एक रीज़न खोजा जाता है, उसके पीछे क्या कॉज है उसे फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है, और उसका जब तक ट्रीटमेंट ना किया जाए तब तक बीमारी को ठीक करना संभव नहीं होता है। तो इसलिए कर्म सिद्धांत भी एक प्रकार से हमारे व्यवहार का कारण बनता है। हमारा जो भी आचरण है, हमारा जो भी वर्तमान का जीवन है, हमने अमुक फैमिली में जन्म क्यों लिया, हमारा स्वरूप ऐसा क्यों है, फिजिकल रूप में हमारा जो भी स्वरूप है वो स्वरूप ऐसा क्यों बना है, हमारे नाक नक्श ऐसे क्यों हैं, हमारी शक्ल ऐसे क्यों दिखाई देती है, हम क्यों ह्यूमन की फॉर्म में हैं या किसी और भी फॉर्म में कोई भी जीव होता है, तो उसके पीछे कर्म सिद्धांत बड़ा कारण बनता है। तो ये हम जब कारण की खोज करते हैं तो हमें पता चलता है कि कर्म हमारे जीवन व्यवहार को रेगुलेट करने में बड़ा रोल प्ले करते हैं। कारण दोनों तरह के हो सकते हैं, इंटरनल कारण भी होते हैं, एक्सटर्नल कारण भी होते हैं हर घटना के। तो हम एक्सटर्नल कारण तो को इजीली समझ पाते हैं। हम चल रहे हैं और रास्ते में अगर कोई पत्थर आ गया और उसके कारण से चोट लग गई तो हम चोट का कारण समझ जाते हैं कि पत्थर बीच में होने से ये चोट लगी है। इसी तरह से डॉक्टर्स भी जब कभी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ इन्फेक्शन है या इस बॉडी के इस पार्ट में ये प्रॉब्लम है, या कहना चाहिए कि किडनी के अंदर स्टोन है, तो अगर उन्हें वो दिखाई देता है तो वो इजीली बता सकते हैं कि ये कारण है। तो ये कुछ कारण ऐसे होते हैं जो कि एक्सटर्नल रूप में हम इजीली देख सकते हैं, टेस्टिंग के माध्यम से भी देख सकते हैं, किंतु कुछ कारण ऐसे होते हैं कि जो हिडन रूप में होते हैं, जिसका पता चलाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारी टेस्टिंग करने के बाद भी पता नहीं चलता है कि ये बीमारी क्यों हो रही है, ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। टेस्टिंग पर टेस्टिंग करवाते हैं किंतु कारण का पता नहीं चलता है। तो हिडन कॉज होता है बीमारी का। एक कई कारण हो सकते हैं, उसमें एक कारण कर्म माना गया है। कर्मज व्याधि जो होती है, बीमारियां होती है, उसके पीछे कर्म भी एक कारण माना गया है। तो जब कर्म को कारण मान लिया जाता है तो उसको पहचानना, उसको डायग्नोज करना बहुत कठिन होता है। तो ये इंटरनल एक प्रकार का एक कॉज है जो कि हमारे भीतर से गवर्न करता है हमारी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर को, हमारे बॉडी के अंदर जो कुछ फंक्शन हो रहे हैं उसको, और बॉडी के अंदर अगर कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो और गलत हो रहा है, कोई बीमारी हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई इश्यूज हो रहे हैं, तो उसके पीछे भी कर्म बड़ा कारण बनता है। तो ये कर्म के द्वारा हम इंटरनली एक इंटरनल सिस्टम है, उस सिस्टम को हमें अच्छी तरह से डिकोड करना है। और कारण के कई जो है ओपिनियन हो सकते हैं। अलग अलग लोग जब कारण को फाइंड आउट करते हैं तो वो अलग अलग प्रकार से कारण बताते हैं। यहाँ पर जैसे सपोज बताया गया है कि बीमारी होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं। स्पेशली इंडिया में पहले तो मेडिकल साइंस का मतलब था कि आयुर्वेद, और आयुर्वेद के डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं तो वो कहेंगे कि वात, पित्त और कफ, ये 3 तरह के दोष हमारे शरीर के अंदर होते हैं। इनमें अगर कहीं असंतुलन हो जाता है या ये दोष कुपित हो जाते हैं, ज़्यादा अतिरिक्त बढ़ जाते हैं शरीर के अंदर, तो उससे बीमारियां होती है। कुछ अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो भी डिकोड करते हैं। एक तरह से एस्ट्रोलॉजी को भी मैं ये मानती हूँ कि वो एक तरह से कर्म साइंस को डिकोड करने वाला एक सिद्धांत है। ज्योतिष ग्रहों की दशा को देख करके ये जान लेते हैं कि आपकी इस लाइफ में क्या अप्स एंड डाउन्स आने हैं, कब आपको जो है बहुत आप आगे बढ़ने वाले हैं, कब आप पीछे जाने वाले हैं। और ये बात किस आधार पर वो कह सकते हैं? वो एक तरह से पास्ट के जो कर्म हैं उन कर्मों की स्थिति को वो प्लैनेटरी पोजीशन के आधार पर उसका एनालिसिस करते हैं। वो डायरेक्टली आपसे ये तो नहीं कहते हैं कि वो कर्म सिद्धांत को बता रहे हैं या कर्मों को, आपके पास्ट लाइफ के कर्मों को देख रहे हैं, परंतु वो जो कहते हैं उस बात से ये प्रमाणित होता है कि ये सब सिचुएशन हमारे लाइफ में जो भी बनती है उसके पीछे जो प्लैनेटरी पोजीशन जो है शो करती है
अब प्लैनेट्स आपके लाइफ को कुछ डायरेक्टली प्रभावित नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल में आपके जो पास्ट कर्म हैं उन पास्ट कर्मों का एनालिसिस करने के लिए ये प्लैनेटरी पोजीशन हेल्प करती है। सो एस्ट्रोलॉजी भी अपने आप में एक तरह से कर्म सिद्धांत को डिकोड करने का तरीका है, और अगर सही एस्ट्रोलॉजर है, सही गणना है उनकी, तो आपको पता चलेगा कि पास्ट में किस क्या क्या कर्म किए जिसका फल वर्तमान में किस किस रूप में आना है। तो ये तभी संभव होता है जब हम इस कर्म सिद्धांत को अच्छी तरह से समझ पाते हैं और एक्सेप्ट कर पाते हैं। कभी बीमारी होती है और किसी तांत्रिक के पास अगर कोई जाता है तो भूता विसंगति भूत विदो वदंती, अगर वो तांत्रिक व्यक्ति के पास जाया जाता है तो वो ये सोचता है कि शरीर में अमुक रोग हुआ है तो उसका कारण ये हो सकता है कि बाहरी किसी शक्ति का, किसी इवल पावर का आपके ऊपर इफेक्ट है और इसलिए ये कंडीशन बन गई है। और जब ज्ञानी जनों के पास, साधु संतों के पास, तीर्थंकरों के पास, आचार्यों के पास में जब आप जाते हैं या किसी धर्म शास्त्री के पास में जाते हैं तो वो बीमारी का कारण आपको कर्म बताएंगे कि जो भी बीमारी शरीर में हो रही है दूसरे अन्य फैक्टर्स का हो सकते हैं कि वो भी सहायता कर रहे हैं, किंतु मूल में कर्म उसका कारण बनता है। शरीर में अगर कोई रोग होता है तो उसमें विशेष रूप से असात वेदनी कर्म का बड़ा रोल होता है। तो कर्म जो है वो हमारी बीमारी का या जीवन में जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं या अन्य कोई प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आती है, उसमें प्राचीन जो कर्म है, पुराकृत कर्म है, पूर्व जन्म में या इसी जन्म में किए हुए कर्म उसका बड़ा कारण बनते हैं। पूरे यूनिवर्स के अंदर जो है हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं, एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य के बीच में तो हमें अंतर दिखाई देता है, अन्य प्राणियों और मनुष्य के बीच में भी बहुत अंतर नज़र आता है। सभी मनुष्य भी एक जैसे नहीं होते, सबके नेचर एक जैसे नहीं होते, सबकी प्रकृति एक जैसी नहीं होती, सबका व्यवहार एक जैसा नहीं होता, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती, सबका चिंतन एक जैसा नहीं होता, सबका देखने का नज़रिया भी एक जैसा नहीं होता है और जीवन भी सबका एक जैसा नहीं होता है। तो इसके पीछे कारण क्या बनता है, इसकी खोज जो है अध्यात्म शास्त्रियों ने, तीर्थंकर परमात्माओं ने, आचार्य भगवंतों ने जो खोज की है उसके आधार पर ये सामने आया कि ऐसा हमारे जीवन को जो रेगुलेट करने वाली चीज़ है, हमारे अंदर जो डिफरेंसेस क्रिएट करने वाली चीज़ है वो कर्म तत्व है। आत्मा सबकी समान है। हम जैन दर्शन में आत्मिक समानता के सिद्धांत में विश्वास करते कि सबकी आत्मा एक जैसी है, फिर भी हमारी आकृति, हमारी प्रकृति, हमारे व्यवहार, हमारी सोच, हमारी दृष्टि में अंतर क्यों आता है, इसके पीछे विशेष कारण जो बनता है वो हमारा अपना कर्म है। सभी जीवों ने समान रूप से कर्म नहीं किए हैं, सबने अपने अपने तरीके से कर्म किए हैं। कौन किस योनि से आ रहा है, कहाँ उसने क्या कर्म किए हैं, वो कर्म वर्तमान में उसके जीवन पर प्रभाव जब डालते हैं तो उसमें उसके कारण से उसमें कई तरह के डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जितनी बायोडाइवर्सिटी यानी सभी जीवों में, जीव जगत हमारा जो है बहुत विशाल जगत है। एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीव उसके अंतर्गत आते हैं। एक इंद्रिय के जीवों में भी 5 कैटेगरी है, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति। इसी तरह से 2 इंद्रिय जीव भी कई प्रकार के, 3 इंद्रिय जीव भी कई प्रकार के, 4 इंद्रिय जीव भी कई प्रकार के और 5 इंद्रिय जीव भी चार प्रकार के हैं। मनुष्य में भी 5 इंद्रिय होते हैं, तिर्यंच में भी होते हैं, देव में भी होते हैं, नरक में भी होते हैं। और मनुष्य भी कहा जाता है 101 प्रकार के मनुष्य हैं। मैक्सिमम उनका और डिवीजन किया जाए तो 303 प्रकार के मनुष्य हो जाते हैं। यानी मनुष्य में भी बहुत अंतर है, कलर को लेकर के बहुत डिफरेंस है, अन्य चीज़ों को लेकर के बहुत डिफरेंस है। तो ये चीज़ें जो हम डिफरेंस देख रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी हमें जो दिखाई देती है, जीव जगत में जो विचित्रता नज़र आती है, व्यवहार की जो विचित्रता नज़र आती है, इमोशंस सबके अलग अलग प्रकार के, कुछ लोगों में बहुत प्रेम है तो किसी में बहुत घृणा है, किसी में बहुत क्रोध है तो किसी में बहुत क्षमा का भाव है, किसी में मैत्री है। तो इस तरह के अलग अलग जो भाव हमें मनुष्यों में दिखाई देते हैं उसका भी डिफरेंसेस हमें नज़र आता है कि सभी को एक ही प्रकार की शिक्षा मिल रही है, एक ही प्रकार के संस्कार मिल रहे हैं, एक ही प्रकार का वातावरण मिल रहा है, फिर भी इमोशनल जो डिफरेंसेस हमें नज़र आते हैं इसके पीछे भी कर्म कारण बनता है। इसी तरह से हमारी शक्ति में अंतर है।
सबका सामर्थ्य एक जैसा नहीं है। हम दारासन की तरह कुश्ती नहीं लड़ सकते हैं। हम खाते तो बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड है, किंतु पावर की दृष्टि से देखा जाए तो बुल के अंदर जो पावर है, हॉर्स के अंदर जो पावर है, एलिफेंट के अंदर जो पावर है, घास खाकर या चना खाकर के उनके अंदर जो पावर है, वो हमारे बादाम और काजू और पिस्ता खाने से भी वो पावर हमारे अंदर नहीं होती है। हमारी शक्ति में भी बहुत अंतर है। ये अंतर क्यों है, किस कारण से है, इसको भी हमें समझना खास जरूरी है। और इन सब सारे अंतर के पीछे कर्म बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा हमारी लाइफ स्टाइल का भी बड़ा रोल होता है कि वर्तमान में हम किस तरह की लाइफ में हैं। ह्यूमन से है तो हमें बुल की तरह पावर चाहिए ही नहीं, ना उस तरह के काम करने, तो हम उस पावर का डेवलपमेंट भी अपने में क्यों करें। इसी तरह से हमारे कंडक्ट में, हमारे आचरण में, हमारे चरित्र में भी बहुत सारा अंतर दिखाई देता है। इस अंतर के पीछे भी कर्म बड़ा कारण बनता है। तो जैसा मैंने कहा कि कुछ लोग मिथ्यात्वी होते हैं, कुछ सम्यक दृष्टि होते हैं, है ना, कुछ तत्व के प्रति रुचि रखते हैं, धर्म के प्रति रुचि होती है, और कुछ लोगों की इस तरह की रुचि नहीं होती है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। दुर्योधन से कहा गया कि भाई धर्म, न्याय, नीति के मार्ग पर चला करो, तो वो कहता है कि मुझे मालूम है कि धर्म क्या है, पर मेरी उसमें कोई रुचि नहीं। अधर्म में जितनी रुचि है उतनी धर्म में मेरी रुचि नहीं है। तो किसी की रुचि धर्म में होती, किसी अधर्म में होती, किसी की न्याय करने में, किसी के अन्याय करने में रुचि होती। कुछ अत्याचार करते हैं, हिंसा करते हैं, कुछ लोग जो है वो न्याय और नीति के मार्ग पर चलने का सोचते हैं। तो ये हमारे कोड ऑफ कंडक्ट में भी बहुत अंतर होता है। सभी एक तरह से आचार का पालन करने में समर्थ नहीं होते। कुछ लोग साधु बनते हैं, कुछ गृहस्थ अनुव्रति का पालन करते हैं। तो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट भी एक जैसे नहीं बन पाते। इसके पीछे भी कर्म बड़ा कारण बनता है। और डिफरेंसेस ऑफ लक, हमारे भाग्य भी अलग अलग हैं। एक ही परिवार में 2 बच्चे जन्म लेते, दोनों के भाग्य अलग अलग होते, दोनों के लक अलग अलग होते, किस्मत अलग अलग होती है। जैसा कि कहा कि एक ही डाल पर 2 फूल खिलते हैं, एक फूल तो जो है वो भगवान के चरणों में चढ़ता है और दूसरा फूल कब्र के पर चढ़ता है। तो फूलों में भी जब इतना डिफरेंस हो सकता है, उनके भाग्य में इतना अंतर हो सकता है, एक ही पेड़ पर लगने वाले फूलों में अंतर हो सकता है, तो एक ही परिवार में 2 बच्चे जन्म भले लेते हैं, किंतु फिर भी अपने अपने कर्मों के कारण से उनके भाग्य भी अलग अलग हो जाते हैं। तो अब ये प्रश्न आता है कि ये जो कुछ अंतर हमें दिखाई दे रहा है, उसके पीछे हम किस तरह के साइंस की बात करना चाह रहे हैं। तो जैन आगमों में 4 प्रकार के ध्यान की चर्चा की गई है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान जो होता है वो वस्तु के स्वरूप पर चिंतन करने के लिए विशेष रूप से किया जाता है। आत्मा का स्वरूप का चिंतन करना है या किसी भी वस्तु के स्वरूप का चिंतन करना है, तो उसके लिए आपका माइंड पूरी तरह से कंसंट्रेट होना चाहिए। जितने भी साइंटिस्ट होते हैं या मेडिकल साइंस के फील्ड में जो भी लोग होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और स्टडी करते हैं सीरियसली किसी चीज़ की, और उसके आधार पर कोई थियरी जो है डेवलप करते हैं। तो जब तक आप किसी चीज़ की पूरी स्टडी नहीं करते हैं तो उसके बारे में आपके लिए कुछ कहना संभव नहीं होता है। तो धर्म ध्यान में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि हम किसी वस्तु के स्वरूप को अगर समझना चाहते तो उस पर हम कंसंट्रेट करें, मेडिटेट करें। और जब मेडिटेशन हमारा डीप होता है तो रियलिटी अपने आप को रिवील करती है ना। उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं होती। जितना आप प्योर परसेप्शन में रहते हो, निर्विचार अवस्था में रहते हो, उस समय रियलिटी अपने आप को ओपन करती है। रियलिटी जैसी है वैसी आपके अनुभव में आती है। आयुर्वेद का कहा जाता है भारत में विकास हुआ, मेडिकल साइंस का जो आयुर्वेद के नाम से जो विकसित हुआ, उसमें विशेष रूप से ऋषि क्या करते थे, प्लांट्स के पास जाते थे, प्लांट्स से टॉक करते थे, उन पर कंसंट्रेट करते थे, उनसे कम्युनिकेट करते थे, उनसे पूछते थे कि आपका क्या उपयोग हो सकता है मानव को स्वस्थ बनाने में। मेडिसिन जो प्लांट्स होते थे वो स्वयं बताते थे कि हमें इस बीमारी के लिए हम उपयोगी हैं, उस बीमारी के लिए उपयोगी हैं। तो ये मेडिटेशन के थ्रू ही ये सारा एक्सप्लोर हुआ है मेडिकल साइंस, जो आयुर्वेद का जैसे कहते हैं। चरक ऋषि हुए हैं, सुश्रुत हुए हैं,
इन लोगों ने धन्वंतरी हुए हैं, तो इन लोगों ने जो है इस तरह से प्लांट्स पर मेडिटेट करके ये मेडिसिन जो है इन्वेंट की है। इसी तरह से सत्य को जानने के लिए भी ये हम धर्म ध्यान का प्रयोग करते हैं, आत्मा को समझने के लिए, लोक को समझने के लिए, जीव जगत की ये जो विचित्रता है उसे समझने के लिए भी धर्म ध्यान किया जाता है। इसी तरह से हमारे अपने जीवन के जो भी प्रसंग होते हैं, अनुकूल बात होती है चाहे प्रतिकूल होती है, उन सब का भी जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसमें दो चीज़ें विशेष ध्यान देने की होती है कि हमारे जीवन में जो कुछ घटता है उसके पीछे दो कारण बनते हैं। एक तो जो घटता है वो हमें दिखाई देता है, उसे विपाक कहते हैं। तो धर्म ध्यान में इस बात पर विचार किया जाता है कि ये जो मेरे जीवन में परिवर्तन आ रहा है, कोई भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं या कोई भी प्रॉब्लम्स लाइफ में आ रही है, तो ये प्रॉब्लम एक तरह से विपाक है, मेरे कर्मों का अपना फल है। कर्म अपने एक्शन में जब आते हैं तो उसका इफेक्ट जीवन पर जिस रूप में भी होता है उसके कारण से कुछ परिस्थितियां हमारे जीवन में बनती है। हम अनुकूल परिस्थितियां भी बनती हैं अच्छे कर्मों के कारण से, और बुरे कर्मों के कारण से प्रतिकूल परिस्थितियां भी बनती हैं। उन परिस्थितियों पर को हम जब ध्यान देते हैं तो वो परिस्थितियां अपने आप में फल है, कर्मों का फल है, कर्मों का प्रभाव है जीवन के ऊपर। किंतु उन कर्म के फल को, प्रभाव को हम कैसे, उसके पीछे क्या कारण है, इसको समझना चाहते हैं तो हमें अपाय विचय ध्यान करने की आवश्यकता होती है। कौन सा ऐसा मैंने काम किया अतीत में या इस जीवन में जिसका फल ये मेरे जीवन में आया है। तो ये दो तरह से ध्यान करके पता चलाया जाता है कि क्या कारण बना मेरे इस प्रॉब्लम का, मेरे इस हेल्थ इश्यूज का, या मेरे जीवन में इस तरह की जो भी परिस्थिति बन रही है उसके पीछे क्या कारण बना होगा। वर्तमान में उसका कभी कभी कारण हमको उपलब्ध नहीं होता क्योंकि वर्तमान में हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। उसके लिए आवश्यकता होती है हम अतीत में देखें। इसलिए प्रेक्षा ध्यान में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भावक क्रिया के सिद्धांत को लेकर के जब बात करते हैं तब वो कहते हैं कि मनुष्य को वर्तमान क्षण में ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहिए, अतीत और भविष्य में ज़्यादा नहीं उलझना चाहिए, जिससे कि मनुष्य के अंदर राग द्वेष पैदा होते हैं। किंतु जब वो कर्म सिद्धांत की बात करते हैं तब उनका ये कहना है कि मनुष्य को कर्म को समझने के लिए अतीत को भी देखना चाहिए। केवल वर्तमान के आधार पर आप अपने जीवन को समझना चाहें तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर शायद आपको इस जीवन की घटनाओं को देख करके नहीं मिलेंगे। उसके लिए आपको अतीत की घटनाओं का एनालिसिस करना होगा, अतीत में जो कुछ आपने किया उसका एनालिसिस करना होगा। उससे आपको पता चलेगा कि मैंने अतीत में ये कुछ किया था, उसका ये फल आज वर्तमान में मुझे मिल रहा है। जो लोग पास्ट लाइफ को देख पाते हैं उन्हें बिल्कुल पता चल जाता है कि मैंने पास्ट में ऐसा क्या किया था जिसका ये फल मेरे वर्तमान जीवन में आ रहा है। तो इसी से ये फल निकल कर के पुनर्जन्म का सिद्धांत हमारे सामने आ जाता है। जब हम कर्म सिद्धांत को समझते हैं तो पास्ट को देखना भी ज़रूरी है, और जब पास्ट को हम एक्सप्लोर करते हैं तो हमारा जो बर्थ पास्ट में किस रूप में हुआ था और किस तरह का हमारी जीवन शैली थी, उस समय हमने क्या कुछ किया था, अच्छा किया या बुरा किया, वो क्या किया था, इसको समझने का हम जब पास्ट लाइफ में जाते हैं तो हमें उसे समझने का अवसर मिलता है। तो आज भी अनेक ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं जो पास्ट लाइफ को समझने के लिए होते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, और इस तरह के प्रयोग करवाए जाते हैं, साधु संतों के द्वारा भी किए जाते हैं, करवाए जाते हैं। और साइकेट्रिस्ट जो होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो विशेष रूप से हिप्नोटिस्ट होते हैं, ये लोग इस तरह के पास्ट लाइफ में ले जा करके कई तरह की कारणों को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। एक लेडी थी, उसके घुटने में बहुत दर्द होता था और उसने जितने भी डॉक्टर्स को दिखाया, जहाँ भी टेस्टिंग्स करवाई, उससे कुछ कारण समझ में नहीं आया कि वर्तमान में ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि उससे घुटनों का दर्द हो। तब एक हिप्नोटिस्ट के पास में जब वो गई और उन्होंने उसको डीप रिलैक्सेशन में ले जा करके हिप्नोटाइज करके उससे पूछा कि भाई तुम पास्ट में कहाँ थी, किस जन्म में क्या तुमने किया, तो पता चला, उसने बताया कि मैं पास्ट में एक जेलर थी और जब कभी कोई क्रिमिनल्स को लाया जाता था तो उसको जब दंडित पनिशमेंट कर देती थी तो मैं उसके घुटनों पर वार करती थी। और उसी कर्म का ये परिणाम है कि वर्तमान में और कोई रीज़न घटने के अंदर समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी दर्द जरूर मैं महसूस करती हूँ।
और ये दर्द उसी कर्म का फल है। तो ये आप समझिए कि कभी कभी हमारे घुटनों में दर्द है या पैर में दर्द है और डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्टिंग होती है, कुछ नहीं निकलता है, पर दर्द है। अब डॉक्टर कहता है कि कुछ भी कारण नहीं है, तो पर दर्द हो रहा है, उसका कोई इलाज तो होना चाहिए। अब इलाज कहाँ से करेंगे? जो हमारे पास्ट के कर्म है, जब तक हम उसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे, उसको नलीफाई नहीं करेंगे, उसको रिमूव नहीं करेंगे, तब तक प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन डॉक्टर नहीं दे सकते। तो ये अपाय विचय ध्यान जो भगवान महावीर ने धर्म ध्यान का जो एक 4 प्रकार है, अपाय विचय, संस्थान विचय, विपाक विचय और आज्ञा विचय, तो ये 4 प्रकार के जो धर्म ध्यान की चर्चा की जाती है, ये एक तरह से वस्तु स्वरूप को समझने के लिए भी है और साथ साथ में हमारे अपनी पास्ट लाइफ को एक्सप्लोर करने का एक तरीका है, एक मेडिटेटिव तरीका है, जिससे आप पास्ट लाइफ को देख करके अपने वर्तमान की जो समस्या है उसका कारण समझ सकते हैं। कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं, फ्रायड हुए हैं, यूंग हुए हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं। उनका ये कहना है कि हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसके पीछे 2 तरह की टेंडेंसीज होती है। एक तो अर्जेंट टेंडेंसी होती है और एक स्वाभाविक होती है, नेचुरल होती है, जिसको वो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स कहते हैं। तो ज़्यादातर मनुष्य के जो भी व्यवहार होते हैं, उनकी जो सोच होती है, उनकी जो नज़रिया होता है, उसके पीछे बहुत सारा जो है वो स्वाभाविक, जिसको हम नेचुरल इंस्टिंक्ट्स कहते हैं, नेचुरल टेंडेंसीज कहते हैं, उसका बड़ा रोल होता है। तो वो उन्होंने 14 इस तरह की नेचुरल टेंडेंसीज को आइडेंटिफाई किया है, जिसको जैन दर्शन में संज्ञा कहा जाता है। 10 तरह की संज्ञाएं होती है हमारे अंदर। आहार संज्ञा होती है, भय संज्ञा होती है, मैथुन संज्ञा होती है, परिग्रह संज्ञा होती है, क्रोध, मान, माया, लोभ और ओग। तो मैंने 14 सारे यहाँ पर नहीं, बल्कि हमारी जो जैन आगमों में 10 संज्ञाओं का जो विवेचन मिलता है, जिनको नेचुरल इंस्टिंक्ट्स के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है। ये नेचुरल टेंडेंसीज होती है हमारे अंदर और वो हमारे बिहेवियर को बहुत सीमा तक गवर्न करती है। तो ये आप देख रहे हैं कि भूख क्यों लगती है। अब यूँ तो कहा जाए कि भूख लगने का कारण है वेदनीय कर्म, ठीक है ना। अक्षुधा वेदनीय कर्म के प्रभाव से आपको भूख लगती है। अगर वेदनीय कर्म का ऊपर आप विजय कर लें तो आपको भूख लगना ही बंद हो जाए, खाने की ज़रूरत ही नहीं रहे, बिना खाए सब कुछ जीवन अच्छे से चलता रहेगा। तो ये भूख लगने के पीछे वेदनीय कर्म कारण बनता है। परंतु जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये कहेंगे कि हमारे अंदर हंगर की एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है, जिसके कारण से आपके अंदर इच्छा होती है कि कुछ खाएं। तो वो अंदर की जो अभिलाषा आपके प्रकट होती है, उसके कारण से आप खाने की प्रवृत्ति करते हैं। तो आपकी हर क्रिया के पीछे कोई ना कोई इस तरह की नेचुरल टेंडेंसी काम करती रहती है। आपको नींद आती है तो नींद की भी आपके अंदर ऐसी इंस्टिंक्ट है, जिसके कारण से आपको जैसे ही रात होती है सोचते हैं कि अब हम सो जाएं, रेस्ट करें। तो इस तरह का जो आपके अंदर जो भाव पैदा होता है, जो इच्छा पैदा होती है, इसके पीछे आपकी नेचुरल जो ये टेंडेंसीज है ये बहुत वर्क करती है। जैन दर्शन और कर्म सिद्धांत को कहा जाए कि नींद आने का क्या कारण है, क्या कारण है? दर्शनावणी कर्म। हमारे विरल भाई से दर्शनावणी कर्म। हाँ, तो विरल भाई जो है ड्रामा में दर्शनावणी कर्म का रोल प्ले करेंगे। सो ये जो हमारे अंदर नींद आती है उसमें दर्शनावणी कर्म बड़ा कारण बनता है। तो इसलिए हमें एनी टाइम लगता है कि थोड़ा रेस्ट कर लें, नींद ले लें, थोड़ा नेप ले लें। सबनी जी हम बहुत थक गए, ज़्यादा लेक्चर आप मत दीजिए प्लीज़, है ना। सो इस तरह का जो है वो चूँकि नींद की टेंडेंसी अंदर से डिमांड होती है रेस्ट करने के लिए, सोने की इच्छा होती है, तो इसलिए फिर व्यक्ति सोचता है कि बस यहीं स्टॉप कर दें। सो ये नींद के है। फियर, हमारे अंदर भय पैदा होता है। तो भय का कारण क्या है? कर्मशास्त्रीय कारण क्या है? हमारे मोहनीय कर्म। सुनील जी। हाँ, तो ये सोहनीय हमारे पिछले जो है ड्रामा के करोड़ीमल जी इस बार जो है वो मोहनी कर्म का रोल प्ले करेंगे। सो मोहनी कर्म के कारण से हमारे अंदर भय की वृत्ति होती है। मोहनी कर्म के कारण से हमारे अंदर 25 प्रकार के इमोशंस क्रिएट होते हैं, है ना, 25 प्रकार के। सो उसमें 4 कषाय, उसके 16 प्रकार और 9 कषाय होते हैं। 9 कषाय में एक कषाय का नाम है भय,
ठीक है ना। सो हमारे अंदर भय उत्पन्न होता है क्योंकि मोहनीय कर्म हमारे अंदर है, अटैचमेंट है शरीर के प्रति, इसलिए उसकी सेफ्टी चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं। थोड़ा सा भी लगता है खतरा सामने है तो डर लगने लगता है कहीं हम वो ना हो जाए, है ना। तो अभी मोक्ष तो जाना नहीं है, नहीं जब लास्ट में अगर लगता है कि हमारा बिल्कुल अंतिम समय, तो डर लगता है कि भैया नहीं अभी कुछ और जीना है। तो ये हमारे अंदर जो भय की वृत्ति होती है, जीवन के प्रति जो जिजीविषा होती है, जीने की जो इच्छा होती है ना, और मरने का जो भय होता है, इसके पीछे मोहनीय कर्म बड़ा कारण है ना। सेक्स की जो टेंडेंसी होती है, ये भी एक प्रकार का नो कषाय है। एंगर जो है वो मेन कषाय के अंदर आता है, मोहनीय कर्म का ही ये सारा प्रभाव है। फाइटिंग का बड़ा अच्छा नहीं, सब में नहीं बना, चुपचाप तो बैठना मुश्किल होता है ना। कोई नहीं लड़ रहा है तो कैसे आपस में लड़ाएं, एक कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है, और कुछ देशों की ऐसी टेंडेंसी होती है कि आपस में दो देशों के बीच में कैसे वार क्रिएट किया जाए, है ना। तो अभी बहुत सारे इस तरह के एग्जाम्पल आप सबके सामने हैं। तो ये फाइटिंग की जो टेंडेंसी है, ये हमारे अंदर बचपन से कहा जाता है हर जीव के अंदर होती है, और जब वो एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचती है तो वो दो देशों को भी आपस में लड़ा सकती है। हाई एम्बिशंस होते हैं हमारे अंदर, कुछ महत्वाकांक्षाएं होती है, ऐसी डिज़ायर्स होती है जिनको हम पाना चाहते हैं, और वो हमारी कंट्रोल से, हमारी पावर से जो है बियॉन्ड होती है, और उसकी हम जब इच्छा करते हैं तो वो भी उसके पीछे भी मोहनीय कर्म बड़ा कारण बनता है। ईगो, डिसीट, ग्रीड, ये इनके पीछे भी मोह कर्म बड़ा कारण है। लोक संज्ञा होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे अंदर यूनिक होती है, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में कुछ चीज़ें पर्टिकुलर होती है। मेरा नेचर है कि ये चीज़ यहाँ रखी जाए तो यहीं रखी जाए, प्रतिभा प्रज्ञा कहेगा यहाँ पे रख दे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, बट मेरा नेचर है कि नहीं ये चीज़ यहीं रहनी चाहिए, ठीक है। सो ये लोक संज्ञा होती है कि मेरा एक पर्टिकुलर नेचर होता है, फ़र्क कुछ भी नहीं है तो भी मुझे वही वैसी ही चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। तो ये लोक संज्ञा कहलाती है। एक ओग संज्ञा होती है जिसको यूथचारिता कहते हैं। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एक होती है, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जिसे लोक संज्ञा कहा जाता है, और एक होती है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जिसको कि समूह चेतना कहा जाता है। जैसा कि अभी हम कैंप में आए हैं, हमारे मन में क्या रहता है, हम सबसे मिलेंगे, सबके साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तो हमारा सब समूह के साथ जुड़ने का भाव पैदा होता है। ये यूथ समूह के अंदर बैठना, मिलना, जहाँ कहीं इस तरह का योग मिलता है वहाँ पर हम जाने का कोशिश करते हैं, चाहे हमें शादी का इनविटेशन मिले, चाहे किसी पार्टी का इनविटेशन मिले, किसी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा हो, हम बिल्कुल उसमें इंटरेस्टेड रहते हैं जाने के लिए। क्यों? क्योंकि हमें समूह के साथ उठना बैठना, वो जिस तरह से बिहेव करते हैं उस तरह से उनके साथ मिक्सअप होना हमें अच्छा लगता है। तो ये हमारी एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है जिसमें हम किसी एक समूह के बीच, एक समाज के बीच रहना चाहते हैं, एक कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, और उस कल्चर को अनेक दूसरे लोग भी अडॉप्ट करते हैं, तो उसी कल्चर के साथ हम भी जुड़ना चाहते हैं, हम कोई अलग तरीके से चलना नहीं चाहते हैं। तो ये ओक संज्ञा कहलाती है। और इसी तरह से डिज़ायर टू लिव लॉन्ग, जिजीविषा जो मैंने पहले ही कह दिया, पॉसेसिव ने परिग्रह, पदार्थ का संग्रह करना, ये भी मनुष्य का एक नेचर है। छोटे से छोटा प्राणी भी इस तरह से चाहता है कि कुछ न कुछ कलेक्शन किया जाए। चींटी भी होती है तो अगर खाने का कोई चीनी मिल गई है तो उसको अब खुद तो उस समय खा लिया, फिर कुछ एक पीस उठा करके अपने बिल में लेकर के आ जाएगी। तो ये टेंडेंसी हर जीव के अंदर होती है कि वो कुछ न कुछ अपने लिए से अपने फ्यूचर की सेफ्टी के लिए या परिग्रह की जो टेंडेंसी होती है उसके कारण से वो कुछ न कुछ चीज़ों का संग्रह करने की उसमें इंटरेस्ट रहता है, और वो इस तरह का एक्यूमुलेशन करता रहता है। टाइम क्या हो रहा है? तो अब कुछ जो है ये मैंने आपको टाइमिंग का घड़ी का पता 9:30 15 मिनट है, ओके सॉरी। सो अब कुछ जो है अभी वर्तमान का जो साइंस है, विशेष रूप से जो मेडिकल साइंस है, उसके हिसाब से अगर पूछा जाए कि हमारा मनुष्य का जो व्यवहार है वो किस तरह से चल रहा है और उसके पीछे क्या रीज़न बनते हैं, तो हमारे डॉक्टर्स कहेंगे कि थायराइड का फंक्शन कहीं गड़बड़ हो गया इसलिए आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, पीनियल ग्लैंड में कहीं अगर इन्फेक्शन हो गया या पीनियल ग्लैंड प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है तो फिर अब मस्तिष्क के जो विकास सही होना चाहिए वो नहीं हो रहा है।
एड्रिनल ग्लैंड्स के कारण से आपके अंदर फियर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एंगर एक्सेट्रा जनरेट होते हैं। गोनाड्स के कारण सेक्सुअल टेंडेंसी आपके अंदर डेवलप होती है, या मेल और फीमेल का जो डिस्टिंक्शन हमें मनुष्य में दिखाई देता है उसके पीछे गोनाड्स का जो सिक्रेशन है वो बड़ा काम करता है। तो डॉक्टर अपनी तरीके से उसका रीज़न बताते हैं, किंतु अब हमें ये देखना है कि वास्तव में क्या रीज़न होना चाहिए। सभी ने अपने अपने तरीके से बताया है, किंतु जिन आगमों को पढ़ते हैं, कर्मशास्त्र का जब अध्ययन करते हैं, धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते हैं, सिद्धांत और तत्वों के जब विचार करते हैं, तब ये बात सामने आती है कि हमारे जो भी जितने भी व्यवहार हैं उसमें चाहे हमारे ग्लैंड्स के सिक्रेशन भले रोल अदा प्ले करते हो, परंतु ऐसा किसी की बॉडी में क्यों होता है, ये प्रश्न है। थायराइड की प्रॉब्लम मुझे क्यों है, इनको क्यों नहीं है ना? तो कहीं ना कहीं कर्म हमारा कारण बनता है। ठीक है, हमारी बॉडी में थायराइड का सिक्रेशन अगर प्रॉपर नहीं हो रहा है, या कहीं बॉडी में किसी भी अदर ग्लैंड्स के इसके द्वारा सिक्रेशन जो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, तो सबकी बॉडी में तो वैसा नहीं हो रहा है, किसी एक ही के बॉडी में ऐसा होता है। सवानो ही है ना, टाइम हो गया। हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा ओके, सॉरी। तो ये अंत में ये सामने आता है कि ये जो नौ तत्व का जो सिद्धांत है, ये एक तरह से डिकोड करने का एक प्रिंसिपल है कि हम ये डिकोड कर पाते हैं कि हमारे जीवन में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे जीवन व्यवहार को रेगुलेट करते हैं, और कहाँ उसको स्टॉप ब्रेक लगाया जा सकता है, कहाँ उसको क्लियर किया जा सकता है। तो इस रूप में जब हम कोशिश करते हैं तो हमें नौ तत्व का सिद्धांत भी देखने को मिलता है, और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक नए तरीके से उसको डिकोड किया है। उन्होंने कहा कि लाइफ को समझने के लिए हमें ये 7 फैक्टर्स को समझना जरूरी है। बॉडी, ब्रेथ, वाइटल एनर्जी, माइंड, इमोशन, कर्म एंड कॉन्शियसनेस। ये सारे फैक्टर्स किस तरह से जीवन को संचालित कर रहे हैं, जब तक आप इनके रोल को नहीं समझोगे तब तक जीवन व्यवहार की समुचित व्याख्या आप नहीं कर पाओगे कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों कुछ हो रहा है। तो ये चीज़ों को हम आगे के लेक्चर्स में डिकोड और करते रहेंगे। जितने भी लेक्चर्स होंगे आप उनको देखते रहेंगे कि उसमें किस तरह से इन चीज़ों को डिकोड करने की कोशिश की गई है और समझाने की कोशिश की है, और इनका क्या रोल है, ये हम किस तरह से समझ सकते हैं, और किस तरह से कर्म सिद्धांत के साथ इसका क्या संबंध है, इसको भी पूरी तरह से समझ सकते हैं। तो इन्हीं के साथ में मैं अपनी बात को यहीं संपन्न करती हूँ, चूँकि समय संपन्न हो गया है। अगला लेक्चर हमारे सामने हिम प्रज्ञा जी का है। प्रतिभा प्रज्ञा जी आए हुए हैं, बट पहले इनका ये था कि लेट पहुँचेंगे, नहीं तो इनका वक्तव्य ज़रूर होता है इसके बाद में। आप देना चाहते तो ये सब पर्टिकुलर है कि ये फॉलो इसी स्केड्यूल को ही फॉलो करेंगे। सो मैं सबनी हिम प्रज्ञा जी को रिक्वेस्ट करती हूँ, जिनको आप बहुत सुनते हैं, अनेक तरीक़ों से सुनते हैं,